Assalamu alaikum students. So today we will discuss another topic that is clean room software engineering. Okay, so what is clean room software engineering in the perspective of software quality assurance? So we will discuss this. The philosophy behind clean room software engineering is to develop code increment that the right the first time and verify their correctness before testing rather than relying on costly Assalamualaikum. process. Walaikum salam. Okay. So Dilshad, Inshallah, we are discussing the topic clean room software engineering. Okay. In the perspective of the software quality assurance, the philosophy behind clean room software engineering is to develop code increments that are right the first time and verify their correctness before testing rather than relying on costly defect removal process. Okay, so this is the strategy, and we have to verify the correctness before the testing. कि ये कितना जो है वो करेक्ट है बिफोर द टेस्टिंग ओके rather than relying on costly defect removal process. Defect removal process we cannot rely the defect removal process always. Okay, firstly we have to firstly we have to verify correctness at our own end. Okay, and before the testing. Okay, after that we can say that now it's ready for testing. Okay, so clean room software engineering is an approach that emphasizes the need to build correctness into software as it is being developed. So it's actually technique approach that emphasizes the need to build correctness into software as it is being developed. Okay, instead of the classic analysis, design, code, test, and debug cycle, the clean room approach suggests a different point of view. In the clean room software engineering, we have some different points regarding the design, regarding the code, regarding the test, and the debug cycle. Okay? So it's a different point of view clean room approach is suggested. Okay, the philosophy behind this. Okay, models developed using formal methods are described using a formal syntax and semantics that specify system function and behavior. तो एक्चुअली क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो आपके पास एक टेक्निक है, एक अप्रोच है कि आपके पास जो आप चीज बना रहे हैं, जो आपने अगर आपको कहा है, एक स्टूडेंट ने कहा या कोई क्लाइंट आपके पास आता है, जो कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे ये चीज बना के दो, आप उसको बना के देते हैं, तो पहले आप उसको पूरी कोशिश करेंगे कि वो करेक्ट हो अपने एंड पे, अपने एंड पे उसको चेक करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है. ओके, इज दिस करेक्ट? अगर हाँ ये करेक्ट है कि नहीं है, अगर दिस इज करेक्ट, ये सही है बिल्कुल, तो आप उसको फिर अप्लाई करेंगे टेस्टिंग. ऐसा तो नहीं है आपने चीज गलत बनाई उसके बाद बोलेंगे चलो टेस्टिंग में गलत आएगा सही कर देंगे, तो कॉस्टली हो जाएगा ना आपके पास. ठीक है, तो rather than relying on costly defect removal process, जो डिफेक्ट आएंगे उसको रिमूवल करने के लिए ये प्रोसेस तो कॉस्टली पड़ जाएगा हम लोगों के लिए. ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक टेक्निक है, एक अप्रोच. So models developed using formal methods are described using a formal syntax and a syntax that specify function and behavior. जिसका function और behavior जो वो describe करता है, जो formal methods के थ्रू जो models develop किए जाते हैं. This specification is mathematical in the form. Okay, तो मेटेरियल फॉर्म के अंदर ये जो स्पेसिफिकेशन वो होती है हमारे पास. क्लीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मॉडलिंग, प्रोग्राम वेरिफिकेशन एंड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो उसके अंदर आ जाती है चीजें, वो क्या कहते हैं कि इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल, जो मॉडल्स है उनको इंटीग्रेट करने के बाद चेक किया, प्रोग्राम वेरिफिकेशन करना, उसकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को चेक करना, जो भी चीज आपके पास आ रही है. अंडर क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल्स आर क्रिएटेड यूजिंग अ बॉक्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन. तो क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होगी, उसकी एनालिसिस वगैरह होगी, वो आप यूजिंग अ बॉक्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं.
A box encapsulates some system component at the specific level of abstraction. Correctness verification is applied once. Correctness verification applied once the box structure design is complete. आपके पास जो correctness verification है वो कब अप्लाई होती है? जब आपके पास जो completely आपके पास structure तैयार हो जाता है, ठीक है? Structure design is complete. जो डिजाइन आपने कहा है, जो आपने कहा है कि डिजाइन कंप्लीट है, तो ये वाली जो चीज होती है आपके पास, तभी आपके पास करेक्टनेस अप्लाई की जा सकती है उस पर। और जब करेक्टनेस वेरीफाई हो गई कि भाई ओके करेक्टनेस, तो आप उसको फिर टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं, कि टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कि अब टेस्टिंग स्टार्ट की जाए, कि हमारे एंड पे कोई इशू नहीं है, इसके बाद में टेस्टिंग करें तो कोशिश होगी कि इशू ना निकले, ठीक है। बट टेस्टिंग का मतलब तो यही है कि इशू निकालना और जो आ रहे हैं आपके पास उन चीजों को वो फार्म डिफेक्ट्स जो उनको रिमूव कर देना। ओके, this involved defecting a set of usage scenarios and determine the probability of use for each scenario. तो उस probability को देखा जाता है। then random data is generated which conform to the usage of probability, मतलब कि कुछ random चीजें ले लेते हैं आप उसको चेक करने के लिए कि हाँ ये ओके है, तो आप उसको according to probability क्या कह सकते हैं कि भाई ठीक है। वो किस तरीके से, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर महविश के पास जो है वो 100 एप्पल्स हैं, ठीक है, और उसको कहा जाता है कि भाई इसमें कुछ एप्पल्स वो हैं जो कड़वे हैं, ठीक है, जो मीठे नहीं है, तो या ऐसी कोई चीज चला कि वो कड़वे हैं, मजेदार नहीं है, उसको चख ले आप, ठीक है, या दिल शेर आपको, ठीक है, तो वो क्या होता है, आप लोग पहले चेक करेंगे, उस चीज को चेक करेंगे कि ये कितने मीठे हैं या नहीं है, वाट एवर जो भी है, ठीक है। तो आप सारी चीजें, आपके पास टाइम कमी, तो आप क्या करेंगे, आप रैंडमली पिक करेंगे, रैंडमली 1 2 3, आपने जो है वो रैंडमली सेट बना लिया कि 10 10 का सेट बना लिया, उन 10 10 में से आपने 2 2 या 3 3 कोई भी अपनी मर्जी से रैंडमली पिक कर लिए, ठीक है, तो 30 आपने पिक कर लिए, 3 3 3 3 करके 30 पिक लिए, और अगर आपको 30 जो पूरे के पूरे मीटर मिल गए, ठीक है, या एक कड़वा मिला शायद, तो आप उस लिहाज से आप प्रोबेबिलिटी की रेट के साथ आप बता सकते हैं कि इसमें जो वो मोर देन 90% या मोर देन 80% चीजें अच्छी हैं, 10% या 20% जो भी आप अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। फिर देन आपके पास आ जाता है the resulting error records analyze and reliability of the software, determine the first for the software component. Max extensive use of statistical quality control, verify design specification using mathematical best proof of the correctness, relies heavily on statistical use testing to uncover high impact errors. Some people believe clean room techniques are too theoretical. कुछ लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, टू मैथमेटिकल एंड टू रेडिकल फॉर यूज इन रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, के मैथमेटिकल हैं, थ्योरेटिकल हैं और रेडिकल हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करने के लिए। If it doesn't advocate unit testing, relying instead on correctness verification, quality control, तो ये जो है यूनिट टेस्टिंग पे या इंस्टेड ऑफ करेक्टनेस वेरिफिकेशन पे ज़्यादा नहीं करते, since most of the software industry is operating at the ad hoc level of capability maturity model, most of organization do it doesn't advocate unit testing. Okay, since most of the software industry is operating at the ad hoc level of capabilities maturity model, most organizations don't make rigorous use of the defined process needed in all phases of the software life cycle. A pipeline of software increments, क्लीन रूम स्ट्रेटेजी हमारे पास जो आती है तो वो क्या होती है और इस तरीके से, ठीक है, तो डिस्टिंग्विशिंग करेक्टनेस ऑफ क्लीन टेक्निक्स क्या होती हैं आपके पास, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो रीज़न क्या है क्यों जो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते इस टेक्निक को, तो वो रीजंस आपको बता दिए हमने कि क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो कहते हैं कि clean techniques are too theoretical, too mathematical, too radical, so that's why they cannot use it. Doesn't advocate unit testing, rely instead on correctness verification and statistical quality control.
Since most of the software industry is operating at the ad hoc level of capability, maturity model, most organizations don't make rigorous use of the defined process needed in all phases of the software lifecycle. Clean room strategy. A pipeline of software increments is developed by small independent software teams. As each increment is certified, it is integrated into the whole. Hence, functionality of the system grows with time. Okay? And increment planning क्या होती है आपके पास, requirement gathering, box structure specification, formal design. So formal design is clean design structure, schemeless extension of a specification. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं. देन हमारे पास इसकी स्टडीज के अंदर कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे कि ये 1 2 3 इंक्रीमेंट प्लानिंग है, और ये इस तरीके से correctness verification. The first level of correctness verification occurred by first level of correctness occurred by test of correctness question. If these don't demonstrate the specification is correct, more formal methods for verification are used. If these don't demonstrate the specification is correct, more formal methods for verification are used. तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोड जनरेशन, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन. तो द बॉक्स स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन रिप्रेजेंटेड इन स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज आर ट्रांसलेटेड इन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज. तो आपके पास जो है वो क्लीन रूम स्ट्रेटजी के अंदर ये चीजें देखी जाती हैं, इंस्पेक्शन की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है, कोड की, स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन किया जाता है आपके पास, प्रोजेक्ट यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर इज एनालाइज्ड, and a suite of test cases of exercise probability distribution of usage is planned and designed. तो आपके पास जो उस प्रोजेक्ट यूजेज को एनालाइज किया जाता है आपके पास, एंड उसके बाद इंस्पेक्शन की जाती है, और डेटा का पूरी से बताया था हमने प्रोबेबिलिटी का, तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं. स्टैटिकल यूज टेस्टिंग टेक्निक जो होती है वो आपके पास सैंपल उठाती है रैंडमली प्रोबेबिलिटी, और उस पर बाद में उस चीज को सबको आप टेस्ट करते हैं उस चीज को. सर्टिफिकेशन. Once verification, inspection, and usage test have been complete, the increment is certified as ready for interior. क्लीन रूम सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजी की जो फिगर है वो इस तरीके से है आपके पास कि किस तरीके से क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फिगर डिजाइन की जा सकती है आपके पास. ठीक है, तो इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, इस तरीके से आपके पास जो वो सिस्टम इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, बॉक्स स्ट्रक्चर, फॉर्मल डिजाइन, करेक्टनेस वेरिफिकेशन, तो ये सब चीजें आ जाती हैं आपके पास. ठीक है स्टूडेंट, तो इस फिगर्स को भी आप लोग देख लीजिएगा, ये फिगर भी इम्पोर्टेंट है, आ सकती है आपके पास. अगर आपको कहा जाए कि क्लीन रूम स्ट्रेटजी को डिजाइन करें, डिस्कस करें विद फिगर, तो ये फिगर आपके पास ये रही है, इस फिगर को आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, ये फिगर डिजाइन करनी होगी अगर आता है तो. एंड आपके पास यूजेज क्या है, समरी आपके पास अगर आता है, पॉइंट्स ये रहे हैं, तो अगर कहा जाता है कि पॉइंट्स क्या है इसके, क्लीन रूम स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, तो आप आपके पास ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, एंड देन इसके अलावा आपके पास क्लीन रूम स्ट्रेटजीज के अंदर पाइपलाइन आ जाती है, क्या रीजन से क्यों यूज नहीं करते टेक्निक्स को, और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं क्लीन रूम सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजीज के, तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड दिस लेक्चर. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट. तो किसी को कोई क्वेश्चन है? दिलशेर, हाजरा, स्टूडेंट्स, शायरा, किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर. ओके, एक चीज हम आप लोगों को क्लियर कर दें, वो ये कि मिड के अंदर हमने कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी थी, फाइनल में हम स्ट्रिक्टनेस रखेंगे. अगर किसी का भी कॉपी हुआ किसी स्टूडेंट के साथ, जैसे कि दिलशेर ने अगर हाजरा का कॉपी किया है या हाजरा ने कॉपी करवाया है दिलशेर को, तो दोनों के मार्क्स 0 हो जाएंगे उस क्वेश्चन पे ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो ये चीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग कोई किसी की कॉपी ना करे और नो कोई कॉपी करवाएगा. अगर किसी ने किसी को कॉपी करवाया या किसी ने कॉपी किया किसी का, तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. इंस्ट्रक्शन पेपर में लिखी हुई है, कुछ फाइनल पेपर जो आएगा उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा. उसमें लिखा होता है कि गूगल मत करें अपने आंसर्स को. ठीक है, अगर आप हेल्प ले रहे हैं कहीं से
तो फिर आपको क्या करना होता है, उस चीज को समझना होता है खुद। जैसे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जो आपने गूगल किया है, तो आपको वो सेम आंसर नहीं मिल रहा, बट आपने कुछ आपको आइडिया मिल गया, तो आप अपने वर्ड्स में लिखो उसको। ऐसा नहीं है कि एज इट इज छाप दिया। अगर हमने देखा कि किसी का आंसर बिल्कुल एज इट इज वेबसाइट से छापा हुआ है, तो उसको आंसर भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि छापना नहीं है आपको, गूगल नहीं करना। किसी का भी आंसर हमने देखा कि सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, तो ऑटोमेटिकली विल गेट 0। सिमिलर आंसर बिल्कुल सेम आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर एक दिलशे ने भी किसी वेबसाइट से छापा है, तो हजरा भी उसी से छापेगी, शायरा भी उसी से छापेगी, इस तरह के सारे स्टूडेंट उसी वेबसाइट से छापेंगे, तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट 0। ठीक है, या किसी ने कॉपी करवाया तो दे विल गेट 0 ऑटोमेटिकली। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है आप लोगों को। दूसरी बात, आप लोगों को जो भी आंसर शीट देनी है वो पीडीएफ फाइल में देनी है, ना कि वर्ड फाइल में। किसी भी वर्ड फाइल में आएगी तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। पीडीएफ फाइल का मतलब है कि आप लोगों को जो भी आपका आंसर्स हैं, उसके बाद आपको उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके एक ही सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 करके एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है, और पीडीएफ फाइल भेज देनी है, हमें अपलोड कर देनी है एलएमएस पे। एक चीज और चेक करनी है आप लोगों को, वो ये कि आप लोग जो क्वेश्चन भेजे हैं वो प्रॉपर्ली पूरे क्वेश्चन दें। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन भेजे, बाकी आपने भेजे ही नहीं, फिर कहेंगे सर हमने तो ये नहीं किया था, तो ये आप लोगों की गलती होगी। आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लीटली कि आप लोग उस चीज को चेक करके भेजें, और जो पीडीएफ की फाइल होगी सिंगल, उस पीडीएफ को फाइल का नाम खुद आपको नाम होना चाहिए। अगर दिलशेर भेज रहे हो तो दिलशेर फाइल का नाम होना चाहिए। ठीक है, दिलशेर_CMSID। ठीक है, और कुछ जी क्लियर सर, है? बिल्कुल बिल्कुल। हाजिरा शायरा चीज क्लियर है कि जो भी चीज करेंगे वो आप लोग, आप पीडीएफ फाइल का नाम वो खुद सर और सिंगल जो फाइल फाइनल आपके सर जो पास। फाइनल पेपर जी, जो फाइनल पेपर होगा वो मतलब वो कितने घंटे का होगा? वो आपको टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटे। 3 घंटे? अच्छा सही। असाइनमेंट बेस नहीं होगा फाइनल पेपर? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो आपको 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसके अलावा पीडीएफ फाइल बना देनी है। ये चीज आप लोगों को बता दी गई है सब लोगों को। असाइनमेंट बेस्ड पेपर आप लोगों का सर आपका पेपर बहुत लेंदी होता है सर। पेपर लेंथी होता है, आप लोगों को जी करना है। सर, बहुत ज्यादा महंगी होता है, बहुत। बेटा आप लोगों को करना है, सॉल्व करना है, सब कुछ करना है आपको। असाइनमेंट बेस्ड नहीं है, आपको 3 घंटे के अंदर सब कुछ कर देना है, सब कुछ। ठीक है, ये मेक श्योर कीजिएगा आप लोग प्रॉपर्ली। और जी कोई सर, बस पेपर लेकिन इतनी बनाई कि लेकिन 1 घंटे में हो तस्वीर जाए। लेनी होती है उसकी, टॉपिक कॉपी की, फिर उसको मिनिमाइज करना होता है, फिर अपलोड करना होता है, कभी कभार नेटवर्क का भी इशू तो हो बेटा जाता है सर, इसमें भी टाइम लग। बेटा उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट देंगे बस, और क्या। आप लोग कहते हैं ना कि सर 3 घंटे का पेपर, हम 3 घंटे पेपर के लिए देंगे, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा जी दे सर देंगे ठीक कि है। आप लोग जो वो ये चीज कर ले कि भाई मिनिमाइज कर ले, ये कर ले, वो कर ले। ठीक है, जी सर। जी सर। सही है सर, थैंक यू। सही है। अगर आप लोगों को हम फॉर एग्जाम्पल 3.5 घंटे या 3.5 घंटे देते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि 3 घंटे पेपर के 30 मिनट आपको, या 20 से 30 मिनट हम एक्स्ट्रा दे देंगे कि आप लोग ये चीजें कर ले, 3.5 घंटे तक कर लेंगे। ठीक है, सर ठीक है। इसमें ये होगा कि सही है 30 मिनट सर। आप लोग जो है वो मिनिमाइज करें, सेटिंग करें, जो भी करना है आपको, पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करें, जो भी करें। हम आपको 20 से 30 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे आपको कि भाई 3.5 घंटे का पेपर है, तो आपको 3.5 घंटे दे दिए, उसके अंदर सब कुछ। 3 घंटे का पेपर है, 30 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है सर। और मेक श्योर ये सब स्टूडेंट्स के कान में बात पहुंचा दीजिएगा। आप सब लोग, शायरा, हजरा, दिलशे, जो भी, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्टूडेंट्स को भी फ्रेंड्स को भी बोल दीजिएगा कि कॉपी नहीं करना किसी का भी, ना ही वेबसाइट से एज चीज छापना है। एज चीज वेबसाइट से छपा हुआ मिला हमें, तो ऑटोमेटिकली विल गेट 0। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से भी चेक कर लीजिएगा आप लोग, और आप लोगों को मेक श्योर करना है, ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, और जो भी चीजें थी आप लोगों को क्लियर है। बाकी ये जो हमारा वीक है वो लास्ट वीक है। ठीक है, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट वीक से आपके पास चीजें हो रही हैं, फाइनल की जो भी चीजें होंगी। और आप लोग एक क्विज भी हम ले लेंगे, जो फ्राइडे के दिन एक क्विज ले लेंगे आपसे, और कुछ चीजें डिस्कस भी कर लेंगे, और जो भी चीजें होंगी। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है अभी, तो दे कैन आस्क Rami. In this lecture we have actually discussed what is clean room software engineering, why we use it, what is the strategies, स्ट्रेटजीज क्या होती है, व्हाट आर स्ट्रेटजीज, करेक्टनेस, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्लीन रूम टेक्निक्स के, वो क्या होती हैं, क्या रीजन से ना यूज करने के वाइडली क्यों नहीं यूज होती है, क्लीन रूम स्ट्रेटजी क्या होती है। और इसके अलावा इसके कुछ पॉइंट्स हैं अपने पास, तो वो 1 से लेकर 9 तक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। और ये क्लीन रूम स्ट्रेटजी की फिगर अगर आपको कहा जाता है विद इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2, इंक्रीमेंट 3 फिगर्स के साथ बना सकते हैं, तो इस तरीके की फिगर आप लोगों को फिर बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है।
तो ये चीजें आ सकती हैं और टेस्टिंग के कुछ डायग्राम दे सकती हैं कि इसके अंदर एरर्स क्या है। तो वो एरर्स वगैरह अगर आप ढूंढ रहे हैं तो अगर नेट से नहीं छापना, आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना। देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है क्लियरली, डिस्क्रिप्शन का आंसर आप अपनी वर्ड्स में लिखें। अपनी वर्ड्स का मतलब आप खुद समझ के लिखे चीजों को। अगर किसी का कॉपी होगा तो फिर ऑटोमेटिकली 0 मिल जाएंगी उसको। ठीक है, चीज क्लियर है ये आप लोगों को? दिलशेर जी सर। कोई क्वेश्चन है? हाजरा कोई क्वेश्चन है? शायरा कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? नो सर। नो सर। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना अपना नाम और CMS ID जो है वो यहाँ पर भी मेंशन कर दें और ग्रुप पर भी मेंशन कर दें, आप अपना अपना नाम और CMS ID। अपना अपना ग्रुप में भी लिखें जल्दी से भी, कोई अपना नाम और CMS ID ग्रुप में भी मेंशन करते हैं आप, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में। That's all for today.